Everyone, let's begin with the topic treatment of the cancer. So, following are some of the methods which will help us to cure the cancer. Even though in some cases it is not completely curable, the patient may die because some of the cancers, such as blood cancer, if we talk about, they are in the whole of the body. It cannot be treated. Fine. So, let's talk about some of the treatment which are available and the patient may recover completely. So following are the methods such as surgery by removing the entire cancerous tissue involving the lymph nodes. Fine. So basically जहाँ ट्यूमर होता है वो ये निकालना इजी होता है, तो वो निकाल के कैंसर को बंद किया जा सकता है, अटकाया जा सकता है. Radiotherapy, tumor cells are irradiated lethally, taking proper care of normal cells and tissue surrounding the tumor mass. So basically ट्यूमर के जो सेल्स होते हैं उनके आजू बाजू के नॉर्मल सेल्स को अफेक्ट ना हो, वैसे करके हम रेडिएशंस देते हैं. फाइन. लीथल मतलब में एकदम डेडली रेडिएशंस होते हैं वे, जैसे कि कोबाल्ट थेरेपी दी जाती है जिसमें कोबाल्ट 60 यूज़ किया जाता है. आयोडीन थेरेपी है, आयोडीन 131. Then X-ray radiations are given. This radiation destroys the rapidly dividing cells. Fine. And it may help in just lethally, or that is killing the cancerous cells and not doing any kind of harm to our normal cells. Then there are chemotherapy medicines have been given. Several chemotherapeutic drugs are being used to kill the cancerous cells. Like anti-cancer drugs inhibit the synthesis of the DNA in the cancer cells, stopping their cell cycle. So basically what happens is the cell cycle of the normal cells, the cell cycle is being inhibited in various cancerous cells because उनका जो DNA होता है उन पे ये अफेक्ट करता है. फाइन. Like जैसे कि some of the drugs are vincristine, then we have vinblastine, then we have Taxol. Fine. जैसे कि vincristine वगैरह की बात करें तो that is being derived from the plant Vinca rosa. Again vinblastine from Vinca rosa. And when we talk about Taxol, it has been obtained from a plant which is termed to be as Taxus baccata. When you need to just remember that is vincristine, vinblastine and Taxol. Now जब हम बात करते हैं ड्रग्स की, तो मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स लाइक हेयर लॉस, एनीमिया एंड सो ऑन. फाइन. सो बेसिकली सम आर बीइंग ट्रीटेड बाय सर्जरी, रेडियोथेरेपी, chemotherapy, and majority of the time what is being done that a combination is being used, that most of the cancer are treated with a combination therapy of surgery, fine, radiations and even with anti-cancerous drugs. Now the next is immunotherapy. They're talking about the next one, that is immunotherapy. So basically immunotherapy is what, that is the patients are being treated by giving the antibodies. Now what are these antibodies actually? Those are the monoclonal antibodies, and these are designed in such a way that they are attached to specialized kind of proteins that they do not go to any other cells but the cancerous cells itself only. So immunotherapy में क्या दिया जाता है? एंटीबॉडीज. कौन से एंटीबॉडीज? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज विच आर डिजाइन फॉर पर्टिकुलर कैंसरियस सेल्स इटसेल्फ. व्हेन दे आर डिजाइन टू अटैच स्पेसिफिक प्रोटीन इन द कैंसरियस सेल्स, उनके साथ किसी प्रोटीन वगैरह को अटैच किया जाता है और फिर यस वो कैंसर के सेल के पास ही जाते हैं. उनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है? टू अलाउ द इम्यून सिस्टम इटसेल्फ टू डिस्ट्रॉय द कैंसरस सेल्स. इस तरह से किया जाता है कि इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं वो सिर्फ कैंसर सेल्स को टारगेट करें. फाइन. जैसे कि एंटीबॉडीज़ भेजे हैं, वो एंटीबॉडीज़ जैसे कैंसरियस सेल्स पे अटैच हो जा रहे हैं. अब समझ लो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, इसको कुछ गलत मान के इसके साथ फाइट करनी चली जाएगी और इसको ख़त्म कर देगी, तो ये कैंसरियस सेल्स भी ख़त्म हो जाएंगे. फिर टू डिस्ट्रॉय रेडिएशंस, टू डिलीवर द रेडिएशंस डायरेक्टली टू द कैंसरियस सेल्स, इसकी मदद से रेडिएशंस भेजे जाते हैं तो डायरेक्टली कैंसर सेल्स को अफेक्ट करते हैं. फाइन. एंड इवन टू कैरी ड्रग्स डायरेक्टली टू द कैंसरियस सेल्स, दे आर बीइंग अटैच्ड विद द ड्रग्स. सो दिस ड्रग्स विल harm only the cancerous cells and none other cells. Fine. So immunotherapy is a very important therapy again. Now cancer vaccine की बात करें तो research is in progress to develop the cancer vaccine yet. When tumor cells have been shown to avoid detection and destruction by immune system, therefore the patients are given such substances called biological response modifiers such as alpha interferons which activate the immune system and help in destroying the tumors. Like ट्यूमर सेल्स की जब
जब बात करते हैं तो बॉडी की लाइक इम्यून सिस्टम जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। फाइन, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें भी इम्यूनिटी की बॉडी के सेल को लगता है कि भी ये नॉर्मल वाले सेल ही है। देयरफॉर द पेशेंट्स आर गिवन सब्सटेंसेस कॉल्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स। पेशेंट्स को क्या दिया जाता है? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस मॉडिफायर्स, जैसे कि अल्फा इंटरफेरॉन वगैरह है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी की इम्यूनिटी क्या होती है? एक्टिवेट होती है, और वो पता लगा सकती है कि भाई अपने बॉडी में ट्यूमर जैसा कुछ है। फाइन, तो यू नीड टू रिमेंबर ऑल द ट्रीटमेंट्स। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर दैट कैप्सिड ऑफ HIV is formed of P24, PE17. Envelope of HIV is formed of lipid bilayer G41, GP41 and GP120. Carcinogen leads to oncogenic transformation, and cancer cells do not show contact inhibition. This is what you need to remember. Fine. Now, moving ahead with the next topic, that is drugs and alcohol abuse. जब हम drugs और alcohol abuse की बात करते हैं, so surveys and statistics shows that the use of the drugs and alcohol has been on the rise, especially among the youth. Yes, this is really a cause of concern as it could result in many harmful effects. Obviously, it's going to destroy the youth. So उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? तो that is a proper education जो है, guidance जो है, वो youth जो है हमारे country के, उनको दिया जाना चाहिए कि भाई ये सारी चीज़ें इनके लिए डेंजरस हो सकती है, और ये जो उनका अगर ये पैटर्न वे रोज़ फॉलो करते रहे तो उनकी लाइफस्टाइल बिगड़ सकती है। फाइन, एंड उनका पूरा करियर समझ लो इट कैन गेट डिस्ट्रॉयड। ये जो ड्रग्स होते हैं विच आर कॉमनली अब्यूज्ड, जो ड्रग्स कॉमनली लिए जाते हैं वो होते हैं ओपॉइड ड्रग्स, कैनाबिनॉइड ड्रग्स एंड कोका अल्कलॉइड ड्रग्स। फाइन, जो हम बोलते हैं जो इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, जैसे ओपॉइड है, आपको याद रखना है, कैनाबिनॉइड्स हैं एंड अल्कलॉइड्स हैं। मेजॉरिटी ऑफ दिस आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट्स। ये मेजॉरिटी ऑफ जो होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? फ्लावर वाले प्लांट में से मिलते हैं। फाइन, सम ऑफ आर देम और ऑब्टेन्ड like some of them are obtained from the fungus like LSD. फाइन, फंगस जो होती है LSD, दैट इज़ उसको क्या बोलेंगे? लिसर्जिक एसिड डाईइथाइल अमाइन। तो सम ऑफ देम आर ऑब्टेन, जैसे कि LSD जो है वो कहाँ से मिलता है? वो फंगस में से मिलता है, समझ लो। तो ड्रग्स ज़्यादातर हमें फ्लावरिंग प्लांट में से मिलते हैं, बट LSD जैसे ड्रग हमें फंगस में से भी मिलते हैं। LSD का फुल फॉर्म क्या है? लिसर्जिक एसिड डाईइथाइल अमाइन इज़ अ dangerous hallucinogenic agent which is obtained from the fruiting bodies of the fungus. जो फंगस की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, फाइन, उनमें से हमें मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपॉइड ड्रग की, फिर कैनाबिनॉइड ड्रग की, और फिर कोका अल्कलॉइड ड्रग की। ओपॉइड ड्रग की बात करने पे जैसे कि मॉर्फाइन है, हेरोइन है, एट्सेट्रा, दोज आर टर्म टू बी एज द ओपॉइड ड्रग्स। नाउ आपको नाम याद रखने हैं। ओपॉइड्स में आएंगे मॉर्फाइन और हेरोइन। ओपॉइड्स आर द ड्रग्स विच बाइंड टू द स्पेसिफिक ओपॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज ओपॉइड के जो ड्रग्स होते हैं उनका वो कहाँ जाके बाइंड होते हैं, उनका रिसेप्टर कहाँ होता है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो समझ लो ये लेने पे आपको लाइक आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और साथ ही साथ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, मतलब में आपकी जो इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह जो पार्ट है उनके अंदर के सेल्स में जाके ये अटैच होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेरोइन की। हेरोइन कॉमनली उनको स्मैक भी बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में, और केमिकली उसका नाम है डाईएसिटाइल मॉर्फाइन। आपको याद रहेगा हेरोइन जो है वो आपको कैसे याद रहेगा? मॉर्फाइन की तरह। दैट इज हेरोइन इज कॉमनली टर्म टू बी एज डाईएसिटाइल मॉर्फाइन विच इज़ अ वाइट ऑर्डरलेस, वाइट कलर का होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती, कड़वा होता है और क्रिस्टलाइन होता है। और ये कहाँ से मिलता है? ये एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फाइन में से। हेरोइन जो है वो हमें मॉर्फाइन के एसिटाइलेशन से मिलती है, और वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है? दैट इज़ पेपावेर सोमेनिफेरम। आपको नाम याद रखना है ऑफ द पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट जो है जिसका साइंटिफिक नेम है पेपावेर सोमेनिफेरम, उसमें से आपको ये मिलती है। फाइन, जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, नोज से और फिर इंजेक्शन से ली जाती हैं। और ये जो हेरोइन है वो डिप्रेशन है और बॉडी के जो फंक्शंस है उसको एकदम स्लो डाउन कर देती है। जो पर्टिकुलर पर्सन का टेंशन वगैरह जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि उनका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह काम करना बंद कर देता है। फाइन, उनकी एक्टिविटी सारी बहुत ही स्लो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स इनको लेते हैं। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन, दैट इज़ मॉर्फाइन। नाउ
मॉर्फाइन इज़ वेरी इफेक्टिव सीडेटिव एंड पेन किलर। येस ऑब्वियसली मॉर्फाइन बहुत सारी दवाइयों में भी डाला जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छा सेडेटिव है, पेन किलर है। एंड इट इज़ वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी। जिनको सर्जरी होती है उसको मॉर्फाइन का ही इंजेक्शन दिया जाता है क्योंकि वो उनका पेन जो है वो कम कर देते हैं, वो पता नहीं चलता। फाइन, ये केमिकल स्ट्रक्चर है जो आपको नहीं याद रखना है मॉर्फाइन का। वो किससे मिलती है आपको? मॉर्फाइन और जो हेरोइन है दैट इज़ पॉपी प्लांट से मिलती है, ओपियम पॉपी, जिसका साइंटिफिक नेम हमने पढ़ा दैट इज पापावेर सोमनिफेरम। नाउ talking about the next one, that is cannabinoids. Cannabinoids, these are the group of chemicals which interact with yes, ऐसे chemicals हैं which interacts with the cannabinoid receptors present principally in the brain. हमारे ब्रेन में जो cannabinoid receptors होते हैं उनके साथ ये जुड़ जाते हैं और उनके साथ ये अटैच हो जाते हैं और फिर लाइक बेसिकली इनका रिसेप्टर कौन है? तो ब्रेन के जो सेल्स हैं वो। फाइन, नेचुरल cannabinoids are obtained from the inflorescence of the plant cannabis sativa। जो cannabis sativa होता है उसके इन्फ्लोरेंस से, उसका फ्लावर का जो ऊपर का पार्ट होता है इन्फ्लोरेंस, फाइन, फ्लावर्स में से ये कैनाबिनस सटाइवा में से हमें कैनाबिनॉइड्स मिलता है। द फ्लावर टॉप्स, जो देखो आपने देखा कि फ्लावर के जो टॉप्स होते हैं उनमें से मिलता है, फिर लीव्स में से मिलता है, फिर रेजिन्स ऑफ द कैनाबीज प्लांट्स आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशंस टू प्रोड्यूस मारीजुआना, हाशीस, चरस, गांजा। तो सारे के सारे नाम आपने सुने होंगे, मारीजुआना, हाशीस, चरस, गांजा, ये सारे के सारे कैनाबिनॉइड्स हैं जिनका अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। जैसे कि किसी में फ्लावर टॉप्स, किसी में लीव्स, किसी में रेजिन, किसी में तीनों तीन, किसी में सिर्फ ये दो, ऐसे करके उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं। जनरली टेकन बाय इन्हेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन, इन्हेलेशन से और फिर नोज से समझ लो, जैसे कि इंजेक्शन से। दिस आर नोन फॉर देयर इफेक्ट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑन द बॉडी। फाइन, इनके जो इफेक्ट्स होते हैं वो हार्ट पे होते हैं, इसीलिए वे जाने जाते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। दिस डेज कैनाबिनॉइड्स आर ऑल्सो बीन अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन। ये स्पोर्ट्स पर्सन भी यूज़ करते हैं। फाइन, लाइक बेसिकली विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड, विच इज़ रॉन्ग। फाइन, basically this is the structure of cannabinoids. You need not to remember, you just need to remember it is being obtained from the plant term to be as cannabis sativus, from the inflorescence of it, from the leaves of it, from the flowers, that is. Then when we talk about the next one, that is alkaloids or cocaine. जब हम cocaine की बात करते हैं, these are obtained from coca plant, that is Erythroxylum coca, that is the native of the South America. It interferes with the transport of the neurotransmitter dopamine, that is हमारे बॉडी के ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है, जिसका नाम है डोपामाइन। तो इस डोपामाइन की एक्टिविटी में ये क्या करता है? इंटरफेयर करता है। तो देखो किसी ने कोकाइन लिया है तो ये डोपामाइन थोड़ा उनका जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगा, तो मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचेगा ही नहीं। तो पर्टिकुलर पर्सन को ये कंज्यूम करने पे पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज़ बीन हैपनिंग टू हिज और हर बॉडी एंड मे नॉट बी एबल टू रिएक्ट टू द सिचुएशंस। फाइन, इट इज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका, जो साउथ अफ्रीका का नेटिव प्लांट है, और ये डोपामाइन की एक्टिविटी में इंटरफेयर करता है। कोकाइन को हम कोक या क्रैक भी बोलते हैं, जैसे हेरोइन को स्मैक बोलते हैं वैसे कोकाइन को कोक क्रैक बोल सकते हैं। ये जो है इट हैज़ अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्व। इसकी जो एक्शन है मेन वो कहाँ होती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होती है, और उसकी वजह से एक सेंस ऑफ यूफोरिया आता है। दैट इज़ यूफोरिया कैसा स्टेज है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ लाइक एक्सट्रीम, समझ लो हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट। फाइन, ऐसा फील होता है कि वी आर वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हैप्पीनेस फील होती है, एक्साइटमेंट फील होती है, विच इज़ टर्म टू बी एज यूफोरिया, एंड इंक्रीज्ड बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है। एक्सरसाइज डोसेज ऑफ कोकाइन कॉजेज हेल्यूसिनेशन। फाइन, हेल्यूसिनेशन में चले जाते हैं, लाइक डे ड्रीमिंग वगैरह हो जाता है। फाइन, लाइक क्या हो रहा है पता नहीं चलता, किसी और वर्ल्ड में है ऐसा फील होता है। फाइन, अदर वेल नोन प्लांट्स विथ हेल्यूसिनेटिंग प्रॉपर्टीज आर आर्थ्रोपा, बेलाडोना एंड धतूरा। फाइन, these are the plants which has the hallucinating properties like that which is being possessed by Erythroxylum coca. Fine.
और दूसरे ड्रग्स हैं जैसे बारबिक्यूरेट्स, एम्फेटामाइंस, बेंजोडाइजेपाइंस एंड अदर सिमिलर ड्रग्स दैट आर नॉर्मली यूज्ड एज मेडिसिन। ये सारे जो हैं वो मेडिसिन की तरह यूज़ किए जाते हैं पेशेंट को मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, इंसोमिया, नींद नहीं आती वगैरह के कारण इनको दिए जाते हैं, लाइक कैसे मेडिसिन में। Several plants, fruits and seeds have hallucinating properties, having been used for hundreds of years in folk medicines, religious ceremonies or rituals all over the world. Yes, hallucinating properties जिन प्लांट वगैरह में है, सीड वगैरह में है, जैसे कि हम देखते हैं होली के टाइम वगैरह जो भांग वगैरह बनाई जाती है वो सिमिलर प्लांट से बनाई जाती है जिनके पास हेल्यूसिनेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। सो वो फोक मेडिसिन में यूज़ की जाती थी। फिर पहले रिलीजियस सेरेमनीज़ की बात करो उसमें यूज़ की जाती थी। when these are taken for a purpose other than medicine or used or is amongst or frequency that impairs one physical, physiological or psychological function, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फंक्शन को हार्म करे, ऐसी डोसेज में ली जाए तो इसे बोलेंगे ड्रग एब्यूज़। फाइन, ये जब रिलीजियस सेरेमनी, जब मेडिसिन वगैरह में ली जाती हैं, जब डॉक्टर्स हमें ये सारे ड्रग्स देते हैं मेडिसिन में, सो दिस इज़ नॉट समथिंग रॉन्ग, दिस इज़ फॉर सम गुड यूज़, सो दैट्स नॉट टर्म टू बी एज ड्रग एब्यूज़। बट व्हेन इट इज़ बीन टेकन इन अ डोज when it is being taken frequently, when it is taken in not the proper amount which may harm the physical, psychological or physiological functions, it is termed to be as drug abuse। जैसे कि हम हमारी happiness के लिए ले तो it is not good, fine, it is drug abuse, it is a crime, fine। On the contrary, when it is being provided in the medicines, it's okay because it's been done for relieving your pain, fine, and it is used to treat various mental illness of many people, and that's why it is been given, rather it is being termed to be as physical drug abuse, because ये जो होते हैं वे सारे हमारे बॉडी को फिजिकली, फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली तीनों तरीके से हार्म करते हैं। फाइन, नाउ वी इन द नेक्स्ट क्लास शैल अंडरस्टैंड अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, adolescence and drug and alcohol abuse। थैंक यू।